خدا ہمیں بندنوں سے نجات دیتا ہے تحفے کے طور پر، خدا ہمیں فکروں سے نجات دیتا ہے تحفے کے طور پر، تکلیفوں سے نجات دیتا ہے تحفے کے طور پر، کمزوریوں سے نجات دیتا ہے وہ بھی تحفے کے طور پر۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ 2025 کا کرسمس شروع ہے اور ہم سب بڑے زور و شور سے کرسمس کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ میرے عزیزوں، کرسمس یسوع مسیح کی پیدائش کو منانے کا جشن ہے، اس بات کو ہم سب جانتے ہیں۔ کرسمس سیزن میں ہم سب کیک کاٹ کر یسوع مسیح کی سالگرہ مناتے ہیں۔ آمین۔ اور آج کرسمس سیزن 2025 کے موقع پر آپ سب کے لیے بائبل مقدس میں سے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ آیت ہے یوحنا 3 باب اور اس کی 16 آیت۔ میں اس آیت کو سنہری آیت کہتا ہوں۔ سنہری اس لیے کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو ہمیں حرف با حرف زبانی یاد ہے۔ بہت سارے بچوں کو بھی یاد ہوگی۔ آپ میں سے کتنی بہنوں کو یہ آیت آتی ہے، کتنے بھائیوں کو یہ آیت آتی ہے، کتنے بچے اس آیت کو یاد کر کے بیٹھے ہیں۔ سنہری آیت یوحنا 3 باب 16 آیت، جس میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ سنہری آیت ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اس سنہری آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر کچھ لفظ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہاں پر جو لفظ ہے بخش دیا، اگر ہم اس لفظ کے لغوی مطلب کو دیکھتے ہیں، یعنی لغات میں اس کے مطلب کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بخش دیا کے جو لغات میں مطلب ہیں وہ ہے عنایت کرنا، عنایت کرنا، عطا کرنا، نواز دینا، مفت دینا، انعام دینا، یعنی بخش دیا، انعام دینا، مفت دینا، نواز دینا۔ جب ہم ان سارے لفظوں کو ملا کر ایک لفظ بناتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان سب لفظوں سے مل کر جو ایک لفظ بنتا ہے وہ ہے تحفہ۔ تحفہ، کیونکہ نواز دینے کا مطلب بھی تحفہ ہے، عطا کرنے کا مطلب بھی تحفہ ہے، انعام دینے کا مطلب بھی تحفہ ہے۔ آمین۔ مفت دینے کو بھی ہم تحفہ کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ آمین۔ تحفے کے طور پر دے دیا۔ میرے عزیزو، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ کرسمس کے دن خداوند یسوع مسیح کو خدا نے ہمیں تحفے کے طور پر دے دیا۔ ہم صدیوں سے کرسمس منا رہے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں کتنے کرسمس منا چکا ہوں۔ ہم اپنی زندگی میں کرسمس کو نہ جانے کیا کیا نام دیتے آئے ہیں، ہم کرسمس کے حوالے سے نہ جانے کیا کچھ سیکھتے آئے ہیں، لیکن آج 2025 کے اس کرسمس میں یوحنا 3 باب اور اس کی 16 آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو تحفے کے طور پر ہمیں دے دیا۔ آمین۔ تحفے کے طور پر دے دیا۔ اور میرے عزیزو، یسوع مسیح تحفے کے طور پر ہمیں ملا ہے۔ یعنی کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمیں تحفے کے طور پر ملا ہے، اس وجہ سے ہمیں اس بات کی خوشی منانی ہے، اس بات ہی کے لیے کیک کاٹنا ہے، اس بات ہی کے لیے ہلا گلا کرنا ہے، اس بات ہی کے لیے گیت گانے ہیں، اس بات ہی کے لیے خوشی منانی ہے کہ یسوع مسیح ہمیں تحفے کے طور پر ملا ہے۔ کیونکہ بخش دیا کا جو معنی ہے
वो है तोहफा देना, तोहफे के तौर पर दे देना। तो मेरे अजीजों, कितनी खुशी की बात है, कितनी अच्छी बात है कि मेरा और आपका यीशु मसीह, जिसे हम मानते हैं, जिसकी हम पैरवी करते हैं, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसे हम अपना आइडियल मानते हैं, जिसकी तालीम पर चलने पर हम फख्र करते हैं, वो यीशु मसीह हमें खुदा की तरफ से कैसे मिला है? तोहफे के तौर पर मिला है, तोहफे के तौर पर। तो मेरे अजीजों, ये खुशी की बात है। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह क्रिसमस के रोज़ हमें तोहफे के तौर पर मिला। इस वजह से हम क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस की खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन इससे आगे बढ़कर मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ आज के दिन। मेरे अजीजों, इस तोहफे के वसीले से हमें नजात मिलती है, और वो नजात मिलती है तोहफे में। आमीन। ये एक हैरत अंगेज बात है। इसको मैं यूं कहूँगा कि इस तोहफे के वसीले नजात भी हमें तोहफे के तौर पर मिलती है। कितनी अजीब बात है। यीशु मसीह खुदा का तोहफा है। अब यीशु मसीह जो खुदा का तोहफा है, ये इस तोहफे के वसीले से हमें जो नजात मिलती है, वो भी कुछ देकर नहीं, बल्कि तोहफे के तौर पर मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। जब हम कलाम खुदा में से इफसियों का ख़त, उसका 2 बाब और उसकी 8 और 9 आयत पढ़ते हैं। इफसियों का ख़त 2 बाब 8 और 9 आयत में लिखा है, 8 आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली। इस बात को फिर से दोहराता हूँ, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली। आगे लिखा है, ये तुम्हारी तरफ से नहीं, बल्कि क्या है? खुदा की बख्शिश। हमने बख्श दिया का मतलब देखा था, उसका मतलब है तोहफा, तोहफा देना, तोहफे के तौर पर देना। और ये लफ्ज़ है बख्शिश। तो जो बख्शने वाला है, उसकी बख्शिश भी तोहफा है। आमीन। उसकी बख्शिश भी तोहफा है। तो मेरे अजीजों, इसी तोहफे यानी यीशु मसीह के वसीले से जब खुदा हमें नजात देता है, तो ये नजात भी हमारे किसी कारनामे की वजह से नहीं, बल्कि तोहफे के तौर पर खुदा हमें अता कर देता है। तो कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा हमें गुनाहों से नजात देता है तोहफे के तौर पर। खुदा हमें बंधनों से नजात देता है तोहफे के तौर पर। खुदा हमें फिक्रों से नजात देता है तोहफे के तौर पर। तकलीफ़ों से नजात देता है तोहफे के तौर पर। कमज़ोरियों से नजात देता है, वो भी तोहफे के तौर पर। हमारा कुछ नहीं लगता, हमारी कोई मेहनत इसमें नहीं है, हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, बल्कि ये तोहफे के तौर पर हमें मिलती है। लेकिन किसके वसीले से? वो तोहफा जो क्रिसमस के दिन हमें तोहफे के तौर पर मिला है, उसी के वसीले से नजात भी तोहफे के तौर पर खुदा हमें देता है। और ये बात यहाँ तक नहीं है, इससे भी आगे जाती है। मेरे अजीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ कि इस तोहफे के वसीले से खुदा सिर्फ हमें नजात नहीं देता, बल्कि खुदा हमें हमेशा की ज़िंदगी भी दे देता है। आमीन। और वो भी तोहफे के तौर पर है, उसमें भी हमारा कोई किरदार नहीं। खुदा यीशु के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी हमें तोहफे के तौर पर दे देता है। ये भी खुदा का कलाम हमें सिखाता है। जब हम नए अहदनामा में से रोमियो का ख़त 6 बाब और उसकी 23 आयत को पढ़ें, रोमियो 6 बाब और उसकी 23 आयत में कुछ इस तरह से हमें लिखा हुआ मिलता है। 6 बाब 23 आयत, 6 बाब 23 आयत, इसमें लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश। बख्शिश क्या है? तोहफा। खुदा की बख्शिश क्या है? हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी। तो हमें इसी तोहफे के वसीले से
खुदा हमेशा की जिंदगी अता करता है, और वो भी तोहफे में। खुदा हमें तोहफे में हमेशा की जिंदगी अता करता है अपने बेटे यीशु के वसीले से। तो मेरे अजीजों, किस कदर खूबसूरत बात है। मैं जब इस बात को सोच रहा था कि खुदा तोहफे में हमेशा की जिंदगी दे देता है यीशु के वसीले से, तो मेरा दिल कर रहा था मैं नाचूं, मेरा दिल कर रहा था मैं ऊंची ऊंची गाऊं, मेरा दिल कर रहा था मैं झूमूं, मैं रक्स करूं, क्योंकि खुदा किस कदर मेहरबान है, खुदा किस कदर अजीम है कि वो हमेशा की ज़िंदगी ही हमें तोहफे के तौर पर दे देता है अपने बेटे यीशु के वसीले से। तो मेरे अजीज़ों, क्या कमाल का तोहफा है। इस क्रिसमस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रिसमस के दिन खुदा हमें जो तोहफा देता है यानी यीशु मसीह, तो वो किस कदर कमाल का तोहफा है, क्योंकि इसके वसीले से हमें नजात भी मिलती है तोहफे में, और हमेशा की जिंदगी भी हमें तोहफे में मिलती है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। आज हमें पता चला क्रिसमस 2025 में, आज हमें पता चला कि यीशु मसीह खुदा की तरफ से तोहफा है। इस तोहफे के बारे में खुदा हमें क्या सिखाता है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। हम उससे मोहब्बत तो करते हैं, हम उसकी ताज़ीम तो करते हैं, हम उसके नाम को लेना पसंद करते हैं, हम उसका नाम आगे पहुंचाना पसंद करते हैं, लेकिन इस तोहफे के बारे में खुदा हमें क्या सिखाता है। कलाम खुदा में से जब हम क्रंथियों का दूसरा खत उसका 9 बाब और उसकी 15 आयत को पढ़ें, तो कलाम खुदा हमें सिखाता है, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। उसकी वो बख्शिश, वो तोहफा, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, शुक्र करने की ज़रूरत है। तो मेरे अजीज़ों, 2025 के इस क्रिसमस पर हमने इस बात को जाना कि यीशु मसीह तोहफे के तौर पर आसमान से ज़मीन पर हमारे लिए भेजा गया, खुदा ने भेजा। और हमें क्या करना है, हमें इस तोहफे के लिए हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है कि खुदावंद तूने इतना अजीम तोहफा हमें अता किया, जिसके वसीले से निजात भी मिलती है मुफ्त में, और हमेशा की ज़िंदगी भी मुफ्त में मिलती है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आप सबों को बरकत दे। आमीन।